Good morning, students. Now we are moving on exercise 12.2, question number 4. Sorry, question number 5. Up to 4 we have done in previous class. Now, what is your question number 5? If in a circle of radius 21 centimeter an arc subtend an angle 60 degree. One circle is given. Right. Now, arc means this one is your arc. This subtends an angle 60 degree. Means here is 60 degrees there. Radius is given. Radius is 21 centimeter. This one is 21. This one is 21. Now, find the length of arc. हमें क्या क्या फाइंड करना है? Length of arc. Second one, what we have to find? We have to find area of sector. Area of sector हमें find करना है. Third, we have to find area of segment. Area of segment. So these three things we have to find. Now, how can we find this? So we are having all formulas, right? So here, first of all, we will write angle theta is equal to 60 degree. Radius is given 21 centimeter. Now, length of arc. What is the formula of length of arc? Length of arc. You are having a formula like pi r theta upon 180. Now, value of pi is not given. So 22/7 I will put. R is 21, theta 60, and this one is 180. So 7 3s are 60, 3s are 3 cancel. So length of arc I got, that is 22 centimeter. Right. Now I want to find the area of sector. So what is the area of sector? So area of sector is equal to pi r square theta upon 360. Now friends, see here. Here you can minimize this solution. Why? Because here see pi r theta upon 180 is given. You can do this by putting all the values. You can put value of pi, r, theta, all we are having. But if you want to do in a short method, then how? So I can convert this into, see here r square is given. So I will separate this r square. So what will become pi r theta into r. What I have done, r square, instead of r square, 1 r I have written here, and remaining pi r theta I have written here. Now 360 इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 into 180, तो ये भी हो जाएगा. Now what is this? This is your L. This is your L. L I have find length of arc, so that will be 22. R is given. R is 21 upon 2. ये आपका मिला है लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क मींस 22. इसको मैं 1 बोल दूं, फ्रॉम 1. सो ये आप शॉर्ट में कर सकते हो. एमसीक्यू में कभी कभी आता है कि लेंथ ऑफ आर्क दी होती है, रेडियस दी होती है, और आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. तो सेक्टर का एरिया में आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी इनबिल्ट होता है. तो आपका दूसरा सेक्टर का एक फॉर्मूला तो है ही, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा ये आप लिख लेना साइड में. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू r upon 2 into l. This one is your another formula for area of sector. ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क रख दो. तो यहाँ पे ये आपका लेंथ ऑफ आर्क l है, r upon 2. तो ये आप इजीली कर सकते हो. अदरवाइज इसमें आप सब वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा. 11 1s are 11, 1 11 2s are 22 plus 1 23.
centimeter square. So I got area of sector is this. Now I want to find the area of segment. Now what is segment? This is your segment, right? So segment का एरिया कैसे मिलेगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. But here angle is 60, not 90. So how can I find the area of triangle? So first of all I will prove this is an equilateral triangle and we are having the formula of equilateral triangle. So how I can find? Here OA equal to OB. These two are radius. So angle OBA and angle OBA equal to angle OAB. Right? दो इक्वल साइड हो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल और एंगल भी इक्वल हो गए. ये 60 है, ये दोनों इक्वल है. सो ये ट्रायंगल में कैसा होगा? डायरेक्टली यू कैन राइट AOB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, वो हम यूज करेंगे. सो एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेक्टर का फॉर्मूला हमें मिल गया. कितना मिला? 231. सो डायरेक्टली यू कैन राइट 231. हियर √3 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है. फॉर्मूला याद ना हो तो याद रख लेना. √3/4 a square. A means your side. So 231 minus √3 ये होगा 21 उसका स्क्वायर. तो 231 minus 21 का स्क्वायर 441 √3/4. तो आपका आंसर आएगा ये. √3 की वैल्यू नहीं दी है तो यही आपका आंसर रहेगा. ठीक है. 231 minus 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेंथ ऑफ आर्क पहले तो एंगल दिया है 60, रेडियस दी है. लेंथ ऑफ आर्क पाई थीटा अपॉन 180 इसमें रख दो. यहाँ पे आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो. यहाँ पे या तो सब वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा. या तो ये जो फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट कर दो. कैसे कन्वर्ट करूं? तो यहाँ पे r² है उसको मैंने सेपरेट किया. एक r इधर लिखा, बाकी क्या बचा? पाई r थीटा, उसको यहाँ पे लिखा. 360 का मैंने दो पार्ट किया, एक किया 2 एंड एक किया 1. तो ये क्या है? पाई r थीटा अपॉन 180 तो l है. तो l तो हमें मिल गया. तो इस पूरे की जगह पे 22 रख दो, r की वैल्यू यहाँ पे रख दो. तो ये मिलेगा मुझे एरिया ऑफ सेक्टर. यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 1/2 बेस इनटू हाइट हम तभी यूज कर पाएंगे कि जब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल हो. ठीक है. नहीं तो आपको यहाँ पे हाइट देनी होनी चाहिए. हाइट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 60 दिया है. ये दोनों साइड सेम है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी सेम हो गए. तीनों का प्लस 180 करें तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 a². ठीक है. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. ए मतलब साइड, तो यहाँ पे 21 रख दो. तो ये आपका आंसर. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6. देखो ये चैप्टर में 11 या 12 क्वेश्चन है टोटल, और आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो ये चैप्टर के मार्क्स आपको फुल आएंगे. तो बेटर कि जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन नंबर 6. कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सबटेंड्स एन एंगल 60. एक सर्कल है, इसकी कोड है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. Radius is given 15 centimeter. Then area of minor and major segment. हमें क्या फाइंड करना है? minor and major segment. इसका एरिया फाइंड करना है.
1.73 और पाई की वैल्यू दी है 3.4। ये दो वैल्यू लगा के हमें इसको सोल्व करना है। चलो अब माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला है ना, तो ये एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो ये भी इक्विलैटरल ही होगा, अब हम नहीं लिखेंगे दोनों इक्वल है 60 है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो डायरेक्टली वी विल राइट कि हियर रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है, इसमें से ट्रायंगल निकालो, माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा और 360 माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। चलो पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर, थीटा 60, ये 360, √3 की वैल्यू है 1.73, ए मींस 15 का स्क्वायर और ये 4। ये कैलकुलेशन करना है आपको। 66 15 को मैं सेपरेट कर दूं, नीचे बचेगा 6, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, 15 का डिवाइड कट नहीं कर पाएंगे तो 225/4, तो ये सबका मल्टीप्लाई डिवीजन करना है। चलो यहाँ पे मैं करूँ 3 2 3 5 2 से इसको करूँगा तो 1.57, तो ये तीन बचे 1.15 5 75 इंटू 1.57, 1.57 इंटू 75, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो ये यहाँ पे पॉइंट रखूँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। चलो 4 से डिवाइड और ये दोनों का मल्टीप्लाई 173 225, इसको 4 से डिवाइड करें। चलो मैं डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 9 36, 4 7 28, 31, right? You can do up to 2 decimal places. So if you subtract these, 5 minus 1 4, 7 minus 3 4, this will become 117 minus 97 20. So this will be your answer. This is centimeter square. So I got the area of minor segment. Now I have to find the area of major segment. So how can I find the area of major segment? So area of major segment, write down the formula for area of major segment. Area of major segment मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं? पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो पूरा सर्कल
सर्कल है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, इसमें से मैं 20.44 माइनस कर दूं, पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, राइट। तो ये होगा 3.14225 माइनस 20.44। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, 314 and 225, 314,225, सेवन 0650, दो डिजिट के बाद पॉइंट, ये दोनों का माइनस करें, 50 में से 44 निकलेगा तो 06 बचेगा, 706 में से 20 निकलेगा तो 686 बचेगा। तो ये आपका ठीक है। खाली कैलकुलेशन पॉइंट वाला है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी सिंपल है। और ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो वो फॉर्मूला यूज करना है। तो ये एक्सरसाइज में ये 6 क्वेश्चन है और एक लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें आपको दिया है कि टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसको ऐसे सेट करना है, इसलिए 2 पाई आर। दूसरा ऑप्शन है आपका P 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है P 360 इंटू 2 पाई आर। चौथा ऑप्शन है P 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? तो पहले तो हमें दिया है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, थीटा आपको दिया है P, है। सर्कल विथ रेडियस R, हमारी रेडियस है कैपिटल R, तो हमें इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सिंपल है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई को पाई ही रहने दो, स्मॉल आर की जगह पे हम रखेंगे कैपिटल आर। थीटा आपको दिया है P और 360। अब आप चेक करोगे ऑप्शन में, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीचे 360 वाला ये है, P यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर हो, ऐसे दो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पाई आर स्क्वायर P 360, मैं ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पे उसके साथ कंपेयर करो, 2 है, पाई है, P है, आर स्क्वायर है, नीचे 720, 360 इंटू 2 720, तो ये हो गया। तो ये इसको वो फॉर्म में लिख दो, पहले P लिखो, नीचे में 720 लिखता हूँ, P और 720 बचा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आंसर डी, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो दिया है, देखो सिंपल, एंगल P मतलब थीटा P होगा, रेडियस कैपिटल R, ये दोनों लिख लो। सेक्टर का फॉर्मूला लिखो, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लिखो, थीटा की जगह पे P लिखो।
अब ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो हमें इसमें कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो कैसे? 360 को मुझे 720 करना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर तो नीचे आ गया 720। p को पहले लिख दो, पाई r स्क्वायर और 2 को बाद में लिखो, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले एमसीक्यू भी आ सकते हैं। हम अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, इतने ही क्वेश्चन है। आगे वाली क्वेश्चन एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड थी, बट वो आपके सिलेबस में निकल गई है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो आपको ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, खाली आपको एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।